praise the Lord and welcome to Father's Care Service online. We are so blessed to have you join us this morning, and we have an awesome service prepared for you. Just before we get into it, let's say the Lord's Prayer together. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. 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 So let's get ready now to worship with the Father's Care worship team. Praise the Lord. Welcome to Sunday Church. Even though it's raining outside, I'm so encouraged and I love seeing your smiling faces today, because guess what? We're in the house of the Lord this morning. Isn't that amazing? Amen. Come on, let's just lift up our praises unto our Father this morning and just worship together. Amen. Day in hope we
love is a constant and will never fade away. Oh Lord, we just ask right now that you just open up our eyes, Lord. We just open up our hearts unto you, Lord. Open up our eyes that we may be able to see how you see, Lord. That we may be able to love how you have loved, Father God. That we can see this world through your eyes and love every single beautiful creation that you have made. Thank you, Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open
open up our eyes into you, Lord, that we may be able to see those the way that you see them, that we can pour out your love unto them, that we can shine your light through us. Our Lord, right now as we're just worshiping you, God, we just invite your presence here, Lord. Lord, have your way. You truly know what each and every one of us are going through. And although it might feel as if you're distant, we know that you're right here with us. You may feel that we're in the most darkest, loneliest place, but even in then, you're with us, Lord. Not just walking next to us, but carrying us through it, Lord. Lord, hear our praises and just dwell right now in this place. यीशु मेरे जीवन मेरे नहीं कोई सबसे महान। यीशु मेरे जीवन मेरे नहीं कोई सबसे महान। आराधना
you so much that you never intended us to do this life on our own, but you sent your sweet, sweet Holy Spirit to lead us and guide us, to teach us all things, not just things about church, not just things about you, not just things about our ministry, about everything, that we may always have a helper and a friend. Before I spoke a word, you were singing over me. 'Cause you have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life for me. So kind to me, and all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, lose the 99, for I couldn't deserve it, still you give yourself away. All the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh. This song, the word reckless love. I remember when I first heard this song, Reckless Love, I was a little bit confused by it. The word reckless.
But then when I finished the song and the writer had explained the word reckless, he didn't mean that when God expresses his reckless love, that it's dangerous, that it's going to harm us. When he says reckless, it means that he doesn't care what happens to him, to his own comfort, to his own well-being. But he's just so consumed just to save us, to love us, to accept us, and that he would leave the 99 just to save the one. And when you have that revelation, when you've been there, that you've been that one that drifted away, these words just hit that much different. That he would leave the 99 just to save you, just to come after you. Even after you rejected him, even after you turned your back, he still came after you. There's nothing that stops him from coming after you. He would go into every single valley. He would climb up every single mountain, split the seas, just to come after you. And come on, we're just going to sing these words right now and just let these words just sink down in our spirit, just to have that revelation that he just loves us that much. Come on, we're going to sing it together. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick
couldn't earn it, for I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh Lord, we thank you so much for this time, Father. This time just to worship you and praise you, God. Lord, we thank you so much that you just love us this much, that you go to the most extreme lengths just to come after us and just wrap your arms around us. And we know that no matter what happens in our life, you will always hold our hands to the end of age, Father God, and even beyond that, God. Lord, I just pray that you'll be with the rest of this service, Lord. Let you just take over, Lord. Take over. Whatever you want to happen, let it happen, Lord. I pray, Lord, that you'll be with the servant as they come to give the word, Lord. I pray that it will be anointed word. It will be just filled with your anointing, Lord. Let it be a word in season, and let it just start to break any sort of heart of stone, Lord. I pray, Lord, that this word is like a hammer that's breaking every rock into pieces, Lord. And I pray, Lord, that it will take a lodging place in each and every one of our hearts, Jesus. Oh, Lord, we just love you, and we thank you, Lord, for all that you've done in our lives. And we just praise you for who you are, Lord. We love you and we glorify your name. In Jesus' name, amen. प्रभु की जय। हम आप सभी को स्वागत करते हैं, जहां से भी आप जुड़ते हो, खास करके जो विदेश से जुड़ते हैं, खास स्वागत आपको। आज इस सुबह का जो प्रोग्राम है, परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का पवित्र और बहुमूल्य वचन आप तक पहुंचाना, ये मेरा जिम्मेदारी है अभी इस समय। और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आप बहुतायत से आशीष को पाओगे, क्योंकि ये जो समय है आज सारी दुनिया के ऊपर एक दुख का बादल छाया हुआ है। जो भी देश में आप है, जहाँ से भी है, आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक घर और घराने बहुत दुखी है। और ये दुख के समय मैं आज परमेश्वर के पवित्र और बहुमूल्य वचन से, जो वचन खुशी का वचन है, शांति का वचन है, प्रेम का वचन है, प्रभु यीशु जो बांटता है आज आप सभी से, मैं धर्मशास्त्र से पढ़ना चाहता हूँ। और आज के जो है वचन वो लिया गया है लूक चैप्टर 7 और वर्स 11 से लेकर 15 तक। लूका के किताब 7वां अध्याय और 11वां पद से लेकर 15 तक हम देखेंगे। और इसमें इस प्रकार लिखा है, नाउ इट हैपेंड द डे आफ्टर दैट ही वेंट इनटू अ सिटी कॉल्ड नाइन, and many of his disciples went with him and a large crowd. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise." धर्मशास्त्र हमें दिखलाता है आज सुबह इस समय दो भीड़ को हम देखते हैं, और ये दोनों बहुत खास लोग हैं, और दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। ये दो भीड़ जो है, एक तरफ हम देखते हैं कि लोग प्रभु यीशु के साथ और हंसते खेलते और गीत गाते और उस भीड़ में चलते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं, उधर से एक भीड़ अलग का भीड़ है, जिसमें दुखी है इंसान, रोते हैं, विलाप करते हैं। और वो भीड़ में से एक माँ जो विधवा है, उसका एक ही बेटा जो आसरा है, उसका देहांत हो गया। उसको लेकर दफनाने के लिए कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं।
और बाइबल कहता है कि दोनों भीड़ आकर आमने सामने खड़े होते हैं। एक भीड़ उस गांव में से निकलकर कब्रिस्तान की ओर जा रहा है और जो दूसरा भीड़ है वो बाहर से इस गांव में प्रवेश कर रहा है, जिस गांव का नाम है नाइन। और बाइबल यह भी बताता है कि प्रभु यीशु मसीह इस गांव में पहली बार प्रवेश कर रहा है। प्रभु यीशु का जो भीड़ है, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो भीड़ है, परमेश्वर का जो लोग है, उसमें उन लोगों में एक खुशहाली है। खुशहाली इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इस संसार में इसलिए आया ताकि तुम आनंद जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 10:10 में कहा। और प्रभु यीशु ने इस बात को कहा कि मानव जाति जो है वो खुशी के जीवन को व्यतीत करे। सो ये भीड़ जो है, इस भीड़ के बीच में हम खुशहाली देखते हैं। और बाइबल कहता है आयज़ेया 9 और 6 में, प्रभु यीशु में शांति है। प्रभु यीशु शांति का राजकुमार है और वो शांति भरा राजकुमार जिस भीड़ के बीच में चलता चला जा रहा है, उन लोगों के बीच में एक बहुत भारी से शांति हर एक के मनों में है। एक प्यार है, एक खुशी है, एक शांति है और लोग आनंद जीवन व्यतीत करते हैं। ये वो भीड़ है प्रभु यीशु का, जहां भी वो मौजूद रहता है उसके मौजूदगी में लोग आनंदित होते हैं। उसके मौजूदगी में इंसान बहुत खुश होते हैं। जो घर, जो घराना प्रभु यीशु में है, वो आनंदित को महसूस करते हैं। उस खुशी को अपने जीवन में उसको आजमाते हैं और देखते हैं कि प्रभु यीशु में कितना खुशी है, प्रभु यीशु में कितना शांति है। जबकि दुनिया में, पूरी दुनिया में अशांति पहुंचा है और फैला हुआ है। कई घरों आज अशांति में फंसा है, लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है कि शांति देने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला राजकुमार और कोई दूसरा नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा एक्स 4 और 12 में कि दुनिया के पूरी पृथ्वी पर अगर उद्धार पा सकते हैं लोग तो सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा। परमेश्वर के वचन कहता है आज सुबह ये जो भीड़ है, इस भीड़ में प्रभु यीशु है। इस भीड़ के साथ 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 लोग चलते हैं और गाना को गाते, गीत गाकर जय जयकार करते, बड़ाई करते और चला जा रहा है। बाइबल कहता है कि जब वो देखता है परमेश्वर की उपस्थिति, साम्स चैप्टर 16 और वर्स 11 में कहता है, इन द प्रेजेंस ऑफ हिम देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। तुम्हारे खुशी में, तुम्हारे शांति में, तुम्हारे प्रेम में कभी किसी चीज का कमी और घटी ना रहता जब प्रभु यीशु तुम्हारे बीच में होता है। जब प्रभु यीशु तुम्हारे घर में होता है, प्रभु यीशु तुम्हारे बिजनेस में होता है, प्रभु यीशु तुम्हारे घराने में होता है, प्रभु यीशु तुम्हारे बच्चों के जीवन में होता है। जब भी प्रभु यीशु होता है तब भी उसी समय आप वो शांति को प्राप्त करते हो। तुम एक शांत रहता है, तुम एक शांत हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे घराने में शांति कायम रहता है, शांति भरा रहता है। बाइबल कहता है कि जैसे जैसे वो भीड़ उस नाइन गांव की ओर बढ़ता गया, तुम जानते हो जब तुम शांति में रहते हो,
जब तुम खुशी में रहते हो तो तुम सिर्फ घर में अपने आप में नहीं बैठोगे, तुम्हारे मन में वो आएगा कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूं। तुम्हारे मन में हमेशा वो बात आएगा कि मैं एक दुखी परिवार के लिए क्या मदद कर सकता हूं, एक दुखी संसार में कौन सा बदलाव को मैं ला सकता हूं। तुम्हारे मन में जब शांति होता है, तुम्हारे मन में जब दूसरे के प्रति प्रेम होता है, तुम अपने घर से निकलकर दूसरों के लिए कुछ करने के तुम्हारा जो मन है वो करता है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें। और बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु अपने भीड़ के साथ में जब उस गांव की ओर बढ़ता गया, बाइबल कहता है वो दूर से देखता है कि दूसरा भीड़ कांधे पर एक मुर्दा को लेकर और तमाम लोग रोते हुए, विलाप करते हुए और उस शमशान घाट की ओर बढ़ रहा है। जिस घड़ी वो भीड़ ने इस भीड़ के सामना किया, आमने सामने जब वो आए, तो बाइबल कहता है कि वो भीड़ उसी जगह पर खड़े हो गए, वो थम गए। इस भीड़ को देखकर, इन लोगों को देखकर वो थम गए। उनके खुशहाली देखकर, उनके अंदर में जो खुशी है उसको देखकर, वो शांति को देखकर ये लोग थम गए, क्योंकि प्रभु यीशु के सामना आमने सामने इस भीड़ के साथ में होता है। बाइबल कहता है कि जब प्रभु यीशु ने देखा उस मां को रोते, जब प्रभु यीशु ने उन आंसुओं को देखा, जब प्रभु यीशु ने उस लाश को देखा, उसकी पूरी बात को समझ में आ गई। क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है He knows the end from the beginning, Isaiah 46:10। उसको मालूम है अंत शुरुआत से। प्रभु यीशु के लिए कोई नया बात नहीं है, उसके नजर से कोई भी बात छिपता नहीं है। बाइबल कहता है जिस घड़ी प्रभु यीशु ने उन लोगों को देखा, उन लोगों के आंख में जब आंसू को देखा, बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु एक दया से भर गया। प्रभु यीशु के अंदर में एक गंभीरता पूर्वक एक दया उसके अंदर आया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु दयालु है, वो दया से भरा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर के हम सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर के पवित्र और बहुमूल्य वचन को तुम सुनते हो, वो बहुत दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है, वो कृपा से भरा है, उसके अंदर में बहुत दया है। जब तुम्हारा आंसू गिरता है उसको पता है, जब तुम रोते हो वो जानता है उस दुख को, वो समझता है मानव जाति के भावनाओं को। ऐसी कोई बात नहीं है जो उससे छिपा है तुम्हारे बारे में। वो जानता है कि वो मां विधवा है, वो जानता है कि उस मां के सहारा सिर्फ एक ही बेटा था जो अब नहीं है। ये बात उसको मालूम है प्रभु यीशु को, और ये बात आज मैं बताना चाहता हूं। जहां भी तुम है, जहां से भी सुनते हो, तुम्हारे दुख को प्रभु यीशु समझता है। तुम्हारे हर एक दुख, मुसीबत, तकलीफ को वो जानता है। तुम्हारे कमी को, तुम्हारे घटी को वो समझता है। तुम्हारे हर एक परेशानी को वो जानता है। इसीलिए बाइबल ने कहता है
मैथ्यू 11:28 में, हे बोझ से दबे और थके मन लोग मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा। बाइबल कहता है जर्माया 33:3 में, Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things that you do not know. पुकार मुझे, मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें ऐसी ऐसी गुड़ बातों को बताऊंगा जो तुम नहीं जानते। ऐसा कितना बात है जो आज हम नहीं जानते। ऐसी कितना बात है जो आप अपने आप के विषय में नहीं जानते, लेकिन वचन कहता है वो जानता है। और उसके दिल में जो दया आया, उस दया में बाइबल कहता है प्रभु यीशु आगे बढ़ा उस दुखी पलवार की ओर, उस आंसू से लथपथ, अंदर से टूटा हुआ, उस भीड़ में जो रोना और पिटना था। प्रभु यीशु के दया, प्रभु यीशु का प्रेम, प्रभु यीशु का चाहत, उसने अपने आप तुम्हारी ओर बढ़ा है। बाइबल कहता है उसके पाने के लिए, उसके अपनाने के लिए, उसकी आशीष को पाने के लिए हमसे वो कुछ नहीं चाहता। हमसे वो नहीं चाहता वो कि हमें आप कुछ दो या मेरे लिए कुछ करो तब मैं तुम्हें मदद करूंगा, तुम्हारे करीब आऊंगा, तुम्हारे आवाज को सुनूंगा, तुम्हारे टूटे हुए मन तक मैं पहुंचूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये परमेश्वर का एक फेवा है, अनडिजर्व्ड फेवा। हम इस फेवा के हकदार नहीं हैं। ये भीड़ इस फेवा के हकदार नहीं है कि हमारे जिंदगी के दहलीज पर प्रभु यीशु एक कदम को रखे। हम उस हक के अधिकार नहीं है कि प्रभु यीशु हमारे घर तक पहुंचे, हमारे दुख और मुसीबत में खड़ा होए। हम उसके हकदार नहीं है। यह प्रभु यीशु का प्रेम है, यह प्रभु यीशु का दया है, यह प्रभु यीशु के अपना मन के इच्छा है कि कोई भी इंसान खाली ना जाए। हर एक इंसान, हर एक मानव जाति परमेश्वर को पहचाने। Bible says, none shall perish, all shall come to the knowledge of Christ. प्रभु यीशु ने कहा, दिन रात मैं तुम्हारे लिए अच्छाई सोचता हूं। जर्माया 29:11 में उसने कहा, I know the thoughts that I think towards you. Thoughts of peace and not of evil, says the Lord of hosts, to give you a future and a hope, according to Jeremiah 29:11. The Bible says, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे हानि की नहीं परंतु खुशी के लिए है, ताकि अंत में जो तुम्हारा मकसद है, जो तुम्हारा पर्पस है जीवन का, जो तुम्हारा आशा, जिसकी आशा तुम लगाए रखा है, वो पूरा होगा। प्रभु यीशु कहता है तुम्हारे दुख और मुसीबत के बारे में रात दिन प्रभु यीशु सोचता है। अच्छाई के सिवा और कुछ नहीं सोचता। बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु उस दया, उस प्रेम से उसने उस क्राउड की ओर, उस भीड़ की ओर बढ़ा, क्योंकि बाइबल कहता है कि वो उद्धार करता परमेश्वर है। वो संपूर्ण रूप से उद्धार करता है मानव जाति को।
और वो बढ़ता है उस कॉफिन बॉक्स की ओर। जहां पर वो लाश है उसकी ओर प्रभु यीशु बढ़ता है। और जो लोग उसको लेकर शमशान घाट की ओर जा रहे थे वो थम गए। द बाइबल सेज दे स्टूड स्टिल। प्रभु यीशु ने बढ़ा, अपने दया को दिखाया, अपना प्रेम को दिखाया, अपनी आशीष को उंडेला उस खुला हुआ कॉफिन बॉक्स के लिए। उसके ऊपर अपना आशीष को उंडेला, अपने हाथों से उसने छुआ और कहा उस बच्चे से, यंग मैन आई से टू यू अराइज। वो कहता है कि हे नौजवान, उठो और खड़ा हो। जो मां अपना सब आशा खो चुका था, वो मां को एक नई आशा, एक नई जिंदगी, एक नई प्रेम, एक नया जिंदगी उसको मिलता है। बाइबल कहता है कि वो बेटा ने खड़ा हुआ और उठकर बातें करना शुरू किया। हालेलुया, प्रभु की जय। परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, उसके ताकत के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा एक मुर्दा जिलाया गया। धन्यवाद दे परमेश्वर को। ऐसा परमेश्वर की सेवा आज हम सुबह करते हैं। ऐसा परमेश्वर के गीतों को हम गाते हैं। ऐसा परमेश्वर की महिमा को हम करते हैं। आज हम जहां भी है इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा हम करते, हम उसकी बढ़ाई करते, क्योंकि बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु उस बढ़ाई का योग है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद दे। बाइबल कहता है वो व्यक्ति ने बातें करना शुरू किया। वर्स 15 कहता है, सो he who was dead sat up and began to speak, and Jesus presented him to his mother. Hallelujah. प्रभु यीशु उस बेटे को, मां को एक नई तोहफा को दिया कि ये मां, ये तुम्हारा बेटा जो मर गया था आज जिलाया गया, वो जी उठा, ताकि परमेश्वर की महिमा को तुम देख सको, ताकि तुम पहचान सको। आज जो भी सुनते हैं इस पवित्र वचन को, प्रभु यीशु की महिमा को तुम अपने जीवन में देखोगे जब तुम अपने जीवन को आज प्रभु यीशु के सामने लाते हैं। आज जो भी तुम्हारा आंसू है, जो आज तुम रोते हो, जो भी व्यक्ति आज दुखी है, आज जो भी कारण हर घड़ी तुम कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो किसी दुख हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे जिस भी हालात में तुम हो, जो भी कुछ आज तुम्हें खींचकर कब्रिस्तान की ओर लेकर जा रहा है, और जिसको तुम मान लिया कि शायद तुम बीमार हो, अब ठीक नहीं हो सकते हो, और उस कब्रिस्तान के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, मैं कहना चाहता हूं आज ये सुंदर सा वचन को आप सुने कि प्रभु यीशु आज तुझे, तेरी ओर देखता है और तुझे बुलाता है, और तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़े होकर और खटखटाता है और कहता कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। आज इस पवित्र सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते कि आप समय निकालकर सुना। जितनों ने भी परमेश्वर का पवित्र वचन को सुना, यह वचन दयाधारी होगा तुम्हारे जीवन में, तुम खाली नहीं जाओगे। परमेश्वर तुम्हारे मांगों को पूरा करेगा। हम धन्यवाद दें।
Thank you so much for joining us today. We hope that the word has been a blessing in your life, and we hope that you have a great week. Now, before we let you go, let's do our declaration for 2021 together. 2021 is my year of word becoming flesh. By faith, I am living by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Your word is my counsel and wisdom, and your word gives me understanding. This year, I am treasuring the words of your mouth more than my necessary food. Every prophetic word spoken over my life is being fulfilled in this season. Your word is a sword of the Spirit in my mouth, manifesting in signs, wonders, and miracles in and through my life. Jesus, you are the word full of grace and truth, and we are beholding your glory as your word works in our midst. In Jesus' name, amen. Amen. We hope that you enjoyed this service today, and there's many more online. So don't forget to like, subscribe, and share on our channel. Let's see you again next week. God bless.